are back on एक Boond Soch की ttalk train of thought with a series of episodes with Professor of Happiness Dr. Nitin Joshi, career design coach. We have seen his inspirational story in all our three episodes. Now, sir, we request you to take us through your corporate journey, the first job from where you have started. What was your experience like? Sure, I think. So there will be some learning for our target audience too. Sure, I think it has been very interesting when we talk about my corporate journey, and though a very humble beginning at Co-Products Limited, and after doing engineering, when you are joining sales, family is asking questions. Yeah. Why did you do engineering? बेचे हैं तो engineering क्यों किया? तो engineering किया है तो ये सब बेचने के क्या business में आ गए? Believe me, I think what I liked about sales and the corporate area is the way people used to carry themselves in the corporate rather than in engineering and manufacturing. So I felt that this is my interest. This is my, probably I don't know the ability part of it, but this is my interest. And therefore I thought it would be really nice to explore things. And let me share with you one model of my own, which I strongly believe, and it is a 3E model. And it starts with explore, evaluate, and then excel. Oh, explore, evaluate and excel like. जिंदगी में जल्दीबाजी ना करें, काफी एक्सप्लोर करें. पूरी दुनिया आपकी, पूरी जिंदगी आपकी एक्सप्लोरेशन की जर्नी होना चाहिए. क्योंकि मैं मानता हूं कि एक्सप्लोरेशन की जर्नी में बहुत मजा है. और जब एक्सप्लोर करें उसको इवैल्यूएट करें कि आप सही रास्ते पर हैं नहीं. और यदि आपका एक्सप्लोरेशन और वैलिडेशन सही आ रहा है तो आपको एक्सेल करने की वो हो जाएगा. एक्सेल आप हो जाएगा. आपको उसके लिए कोई बहुत मेहनत नहीं करना पड़ेगी. आपके यदि प्रोसेसेस ठीक हो एक्सप्लोरेशन के और इवैल्यूएशन के तो आउटकम विल बी एक्सेलेंट. दैट इज व्हाट द 3E मॉडल. लाइक आई वाज इन्फ्लुएंस्ड विद द मॉडल ऑफ PDCA which Dr. Deming had shared and Dr. Shewart had shared earlier in our learning. So I thought that okay, that is a great model. You have to plan, but when we talk about plan, there is a concept of uncertainty in the planning. So VUCA is there, uncertainty is there, volatility is there. Today they have come up with a new word called tuna. Where turbulence is there. So when you have so much of uncertain words and turbulence and volatility, I thought let us keep on exploring. So exploring in known conditions or unknown condition, it is better to explore in unknown conditions. And that is what life is all about. So this is how I ventured into sales. And to be very, very honest, let me tell you, I was a very introvert guy, and now also I'm an introvert guy. And in the initial months, really it was very bad because I never could sell anything because selling was not my cup of tea. Now I'm telling you the importance of training in life. One gentleman, Mr. Partha sir, and the other gentleman, Mr. Steve Bedo. I don't forget these names because they have shaped my career. I can tell you, they have given the shape to my career. And they told me what is selling, how to sell, and how to win orders, how to close orders, how to handle objections, and how to keep on moving. What is prospecting? Everything means the basic fundamental of sales. So after initial first 2 months were very scary kind of thing because in ATCO the tagline was only white tigers survive. Okay. So everybody doesn't survive in ATCO. Okay. So you perform or perish. So there were only 2 P's in the organization: perform and perish. And I think that is my luck that I was with such a wonderful organization. But performance was a norm. It was not ordinary. It was a norm. The normal thing to perform. So no, I won a lot of initial orders after a training program. But one thing which I wish to share with you is during the initial phase of my career with ATCO, I was in Pune and I went to a plant in Bhosri, which was into a casting plant, and there was a requirement of 3 electronic wing balances, platform based wing balances, 100 kg, 150 kg kind of thing. There were 3 competitors. I still remember. One was S.A. Taroka, another was Sansui, and third was ATCO. So we had quoted, and ATCO at that time was a premium product. Price was also premium. So when you have a premium price, premium product, the expectation of the customer is, can you reduce the price? The answer is no. So, but there has to be a justification that why my price is high. Probably at that time
probably my mood, my learning, my teaching or whatever, I just believe that I am with a strong brand and I don't need to convince anybody else. I was wrong and I lost the order. And believe me sir, I am not somebody who just will say okay, I lost the order, but it was the changing phase of my life where I realized that you need to communicate, boss. You need to communicate what you are, because if you don't communicate, you can be with the best of the brands, but let people know why you are best, what is so great about you. Unless and until you make that effort, it is very difficult to cope up with this competition. It is very difficult to cope up with the stress. So I personally feel that realization came there in ADCO. That I think the foundation थोड़ा से बन गया, like एकदम first solid. step towards in corporate life. उसके बाद मैं वहां पर एक और जेंटलमैन है मिस्टर पीके रॉय, वो उन्होंने मेरा एक और जो कहते हैं फाउंडेशन मार दिया, एक और दूसरा पिलर मार दिया. और वो था कि मैं अच्छा सेल्समैन हो गया और मुझे वहां पर एक एचआर का एक हमारा बंदा था, वो बोलता था की तू काय करतो रे बाबा, मार्केटमध्ये जातो, ऑर्डर घेऊन येतो, फटाफट रिटेलला कन्व्हिन्स करतो, इथे लोकांना घाम सुटतं, ऑर्डर येत नाही, तू काय करतो. कधी काहीच नाही, असं सिम्प्लिसिटी आणि कन्व्हिक्शननी जातो, खूप कॉन्फिडेंटनी जातो की माझं प्रोडक्ट चांगला असेल, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और क्यों नहीं लेंगे, तो इस कॉन्फिडेंस से जाता हूँ. तो मैं एक बार वेंकटेश्वर हैचरीज पूना में है, वहाँ गया और वहाँ पर गया, करीब शायद 9:30 बजे का मेरा अपॉइंटमेंट था, पहुँच गया. 11 बजे मेरे ऑर्डर्स क्लोज हो गए, मैं वापस ऑफिस में आ गया. अब जैसे ऑफिस में आया मैं बड़ा खुश था कि ब्रांच मैनेजर मुझे बोले वाओ ग्रेट, वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर पीके रॉय वाज आल्सो सिटिंग इन द ऑफिस एंड आई थॉट वो भी बोलेंगे कि वेरी गुड, ये वो. ही सेड गुड, वेरी गुड वगैरह कुछ बोला नहीं. अच्छा बोले कि फिर आई वाज, अभी वो ऑर्डर आने के बाद ऐसा लगता है कि अब क्या हो गया, आज का दिन का काम खत्म हो गया. 11 बजे थे. सो बोले नितिन व्हाट आर यू डूइंग इन द ऑफिस. मिस्टर पीके रॉय टोल्ड मी एट 11 o'clock व्हाट आर यू डूइंग इन द ऑफिस. मैंने कहा आई जस्ट गॉट 2 orders. सो ही सेड सो व्हाट. तो उन्होंने बोला कि डोंट बी कॉम्प्लेसेंट, जर्नी में कॉम्प्लेसेंसी मत लाओ कि 2 ऑर्डर हो गया तो काम खत्म हो गया. शुरुआत, अभी पूरा दिन पड़ा है, इस दिन को हम कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं और कैसे टाइम का महत्व समझ सकते हैं. तो अभी तो आप और 5 ऑर्डर आज ला सकते हो. तो यदि आप आज यही सोच के बैठ जाओगे कि आज मेरा काम खत्म हो गया 11 बजे, तो आप अपने आप के साथ ही नहीं बट ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी आप वो नहीं कर रहे, जस्टिफिकेशन नहीं कर रहे. दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट. टाइम का बहुत वैल्यू करो, डोंट वेस्ट योर टाइम. वो मुझे पीके रॉय ने सिखाया और ये सब चीजें मुझे इसलिए इंपॉर्टेंट लगती है कि मैं कभी भी, मुझे लगता है कि टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए, नॉट वेस्ट. पर्टिकुलर जगह पे कोई आपको कोई जगह देते हैं ना, तो देन यू राइट मोर कॉशियस लाइक. तो वहां पर और प्रोडक्ट ट्रेनिंग, ये मुझे लगता है कि नॉलेज आपका फाउंडेशन होना बहुत जरूरी है. तो स्टीव बेडो को जब मैं याद करता हूं तो इंपॉर्टेंस ऑफ नॉलेज, प्रोडक्ट नॉलेज क्या होना चाहिए, आपका नॉलेज कस्टमर से ज्यादा होना चाहिए हमेशा. ये बात मुझे स्टीव बेडो जी ने बताई और मैं आज भी मानता हूं कि जब भी मैं पढ़ता हूं या कोई भी चीज समझने की कोशिश करता हूं तो कोशिश यही रहती है कि क्या मैं समझ रहा हूं. और आई विश टू शेयर विथ यू वन सिनेरियो हियर कॉल्ड अंडरस्टैंडिंग. ये वर्ड अंडरस्टैंडिंग सर लगने के लिए बड़ा सिंपल है. हैव यू अंडरस्टूड, क्लास में पूछते हैं हैव यू अंडरस्टूड, सब बच्चे बोलते हैं यस आई हैव अंडरस्टूड. टीचर भी सोचती है कि एवरीबॉडी हैज अंडरस्टूड, बुक क्लोज हो जाती है, सब बाहर निकल जाते हैं. अब ये अंडरस्टैंडिंग का मतलब है सर, मैंने काफी डिटेल में जब एक कोर्स कर रहा था जिसका नाम था यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज, उस कोर्स को करते करते मुझे पता चला कि अंडरस्टैंडिंग के भी प्रोसेस है. अंडरस्टैंडिंग में है पहले यू ऑब्जर्व, देन यू लिसन. अंडरस्टैंड करने के लिए यू ऑब्जर्व, देन यू लिसन टू समबडी. व्हेन समबडी इज टेलिंग यू, यू प्लीज लिसन टू हिम. थर्ड इज वैलिडेट whether whatever somebody is saying is right true or false. Then have you valid, then verify. If you follow this process of listening, observing, validating, verifying, once you are verified, you have already understood. Now how many people really follow this process of understanding? just nod their head yes. तो लोग सिर्फ बोलते हैं हाँ मुझे समझ में आ गया. बहुत जल्दीबाजी में हम हर चीज जल्दबाजी में करना चाहते हैं. मुझे लगता है यहाँ पर लोगों को अपनी अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना चाहिए. ब्लूम्स टेक्सोनॉमी में भी बहुत इंपॉर्टेंस है अंडरस्टैंडिंग का. तो मुझे लगता है कि ये अंडरस्टैंडिंग बढ़ाना न कि सिर्फ स्टूडेंट के लेवल की जिम्मेदारी है, लेकिन टीचर्स के लेवल की जिम्मेदारी भी है कि वो पहले अपनी समझ बढ़ाए स्टूडेंट के बारे में.
स्टूडेंट की लर्निंग के बारे में, वो हम और कोई बात करेंगे, बट ये मेरा एडको में अंडरस्टैंडिंग, मुझे जो पैरामीटर था वो मुझे समझ में आ गया। इसके बाद सर मेरी एडको के बाद मेरी जो जर्नी थी वो डेटा प्रो में थी। तो डेटा प्रो में जर्नी कंटिन्यू इसलिए हुई क्योंकि कुछ एडको के लोग डेटा प्रो में शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी। आईटी बूम में था, आईटी में डेवलपमेंट हो रहा था, तो मुझे लगा कि अब मैं आईटी को लूँ और आईटी के साथ में बढ़ूँ। और कंपनी में बहुत टर्बुलेंस था उस टाइम पर, तो इन टर्म्स ऑफ फाइनेंशियल सिनेरियोज एंड ऑल, बट काफ़ी सीखने को मिला। यानी जो टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग मुझे आईटी प्लेटफॉर्म्स की, आईटी टेक्नोलॉजी की अंडरस्टैंडिंग मुझे डेटा प्रो ने दी। तो इसलिए मैं, लेकिन और वहाँ पर ये भी था कि कुछ कभी कभी सैलरी डिले होना, हाउ डू यू स्टिल अडेप्ट टू दैट सर्कमस्टांसेस। ये जब सैलरी डिले होने के बाद भी क्या अपने आप को आप मोटिवेट कर सकते हो, क्या आप अपनी टीम को मोटिवेट कर सकते हो जब सैलरी नहीं दी जा रही है। तो ये सब पैरामीटर्स मुझे वहाँ से समझ में आए कि ये भी हो सकता है सिनेरियो। एंड मुझे पूना के बाद में, पूना में मैंने डेटा प्रो में ज्वाइन किया था और फिर मुझे उन्होंने दिल्ली एरिया मैनेजर के रूप में दिल्ली में मुझे डेटा प्रो में। अब जब मैं डेटा प्रो में दिल्ली में गया ना सर, तो मैं वहाँ पर सीजीओ कॉम्प्लेक्स में मेरा पूरा बिजनेस देखने का काम था। सीजीओ कॉम्प्लेक्स में उस टाइम पर मेरी एज कुछ 32-33 के आसपास रही होगी और मेरा जो इंटरेक्शन था वो था लगभग हाईएस्ट अथॉरिटीज ऑफ इंडिया in terms of border security force, in terms of DGSNTs and all. And believe me sir, I can tell you ki the kind of relationships I could develop because of the past experience of ADCO and all, it was superb. well, एक पर्टिकुलर जगह पे किसी ने आपको दिशा दिखा दी हो तो then you're pretty strong on that right? तो वहाँ से जब मैंने दिल्ली में, क्योंकि मुझे somehow मैं शायद दिल्ली शहर के साथ में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाया एज ए फैमिली सिस्टम, और बीइंग शायद मराठी स्पीकिंग एंड बॉम्बे पुल एंड ऑल दैट, सो आई हैड एन इंक्लिनेशन टू कम बैक टू बॉम्बे एंड बेसिकली आई एम फ्रॉम मध्य प्रदेश इंदौर। तो लेकिन जब दिल्ली से जब मैंने रिजाइन किया तो आई स्टिल रिमेंबर द नेम ऑफ सीईओ, ही वाज मिस्टर इब्राहिम। एंड आई कैन टेल यू सर कि इब्राहिम सर ने मेरे डैडी को फोन किया खंडवा में, क्योंकि उस टाइम पे मोबाइल नहीं हुआ करते थे। लेकिन जब हम एडमिशन या ज्वाइनिंग करते हैं तब अपने घर का परमानेंट एड्रेस, टेलीफोन नंबर, डैडी का नाम वगैरह देते हैं। तो उन्होंने फोन किया कि आई कांट अलाउ नितिन टू लीव माई कंपनी, आई वॉन्ट हिम इन माई कंपनी, व्हाई डोंट यू टॉक टू हिम। तो ये मेरे लिए, जब मेरे फादर ने ये बात बताई, क्योंकि आपको लगा कि उनको, फादर को भी लगा कि ये तो आई वाज सरप्राइज्ड टू रिसीव अ कॉल फ्रॉम अ सीईओ ऑफ अ कंपनी asking you to be there with him, and so I'm proud of you my son, that's what my father said. तो मुझे लगा कि जब आप काम अच्छा करते हैं, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं, तो कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है आपको। मीन्स मैं थोड़ा सा इस फिलॉसफी का हूँ कि पैकेजिंग से ज्यादा कंटेंट में दम होना चाहिए। दो कंटेंट, पैकेजिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, आई डू नॉट say that it is not important because a lot of things get sold because of the packaging, but फिर भी मुझे लगता है यदि कंटेंट में दम है, जैसे सोना है तो सोने को कहीं भी रख दो सोना ही रहेगा, उसको आप डस्टबिन में भी डाल दो तो सोना ही रहेगा, गले में पहन लो तो भी सोना है, और भगवान के इसमें मूर्ति में भी डाल दो तो सोना ही रहेगा। तो मुझे लगता है वो कंटेंट तो स्ट्रांग बने, ये सीखा मैंने एडको डेटा प्रो में। आगे जर्नी शिफ्ट हुई ITNT बॉम्बे में, यहाँ पर बड़े बड़े क्लाइंट्स को हैंडल करने का मौका मिला। लाइक HDFC में पूरी फैसिलिटीज मैनेजमेंट के लिए कैसे काम कर सकते हैं, बड़े बड़े ऑर्डर्स को कैसे लेना है। और MCX में बहुत अलग जर्नी थी, क्योंकि वो कमोडिटीज मार्केट था। मेरा फाइनेंस का बैकग्राउंड नहीं है, मेरा कमोडिटी का बैकग्राउंड नहीं है, एग्रीकल्चर का भी बैकग्राउंड नहीं, इंजीनियरिंग का बैकग्राउंड था। इंजीनियरिंग से आपने कमोडिटी में कैसे आपने एडजस्ट किया? वहाँ पर क्या हुआ कि ये हमारे वहाँ एक मित्र थे भरत कुलकर्णी, अभी वो डॉक्टर भरत कुलकर्णी है, तो उन्होंने उस टाइम पर एक अपॉर्चुनिटी थी। एंड somehow I can tell you that when Steve Edu had taught me the training things, then Partha Sarthi had taught me about training, so I sensed somewhere that this is what I wish to do in my life. तो ट्रेनिंग के पैरामीटर्स, उसके बाद मर्कुरी गोल्डमैन की भी एक मैंने ट्रेनिंग अटेंड की थी, तो मुझे लगा था कि ये जो ट्रेनर काम कर रहा है ये मैं कर सकता हूँ और इसमें शायद मुझे बहुत मजा आएगा, ये फीलिंग थी। तो मैं वहाँ पे MCX में जब मुझे जॉब प्रोफाइल में सीनियर ट्रेनिंग मैनेजर के रूप में अपॉर्चुनिटी मिली, तो आई थॉट लेट मी नॉट मिस इट, सो and I will put in all my efforts to learn what is commodity. I will put in all my efforts to understand what is finance, and I'm
I take pride in saying that when MCX took my exam about commodities market, I had scored around 93% on commodities. So gone in depth in the subject. So that is my habit now. I wish to go into the depth of whatever I do and then probably try to understand. And then when I'm satisfied with it, then I move ahead in the journey. So this is how I had been with MCX also, and it was a great learning opportunity. From MCX, while we were doing some programs, and particularly the diploma in commodities market, I happened to interact a lot with Wellington Institute of Management, and then that shift. MCX. So MCX there were three important people in Wellington, and I used to interact a lot because of the diploma in commodities program with them, and I did share some time that I will be keen in education. So that is how that shift from industry happened, from industry to education. So there was a earlier shift in Indore where I was with I'll tell you that story. That is very interesting. Bombay में था, and बॉम्बे का ये जो लोकल और की पकड़ और धड़ पकड़ और जो भाग दौड़ से तो ये लगा कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन मैं मेरी फैमिली को ये इसमें नहीं डालना चाहता था. ये मेरा बहुत क्लियर था कि कभी मेरे बच्चों को इस तरह की लाइफ, ये मेरा सपना नहीं है कि मेरे बच्चे भी इसी तरह से करें. तो इसलिए मैं इंदौर शिफ्ट हो गया, और बहुत ही हैपेजर्डली शिफ्ट किया मैंने इंदौर. एक कंपनी में था, तो I just decided to quit that company, and it was shocking for my father-in-law. Kerry, you have left the job. What will happen to you? I mean, don't worry, I'll manage the show. So वहाँ पे गए, तो वहाँ पर मुझे शुरू के 3 दिन तो हम सेटल हो गए वहाँ पे, और चौथे दिन मैंने वहाँ पर इंग्लिश स्पीकिंग का जो कोर्स था, वहाँ पर I started taking classes also, just to start अर्निंग के लिए. मीन्स मुझे वहाँ पर मुझे याद है कि पूरे लाइफ में अभी तक मैंने वो शुरुआत की थी कि जब मैं पर आवर बेसिस पर भी मुझे पेमेंट मिलता था, जो कि अभी फ्यूचर है, फ्यूचर ऑफ इंडिया वही है कि लोगों को शायद पर आवर बेसिस पर पैसा मिलेगा. तो वहाँ पे मेरी जर्नी शुरू हुई कि पर आवर बेसिस पर. लेकिन 7 दिन के अंदर ही मुझे वहाँ पर एक और जबलपुर मोटर्स की कंपनी थी, तो उसमें मुझे थोड़ा सा आई गॉट ए जॉब एज ए सीनियर मैनेजर फॉर सेल्स वगैरह. तो आई स्टार्टेड, एंड देन वहाँ पर मुझे लगा कि एनवायरमेंट इज नॉट ग्रेट, सो इट वॉज वेरी शॉर्ट स्टिंट, अ फ्यू मंथ्स, एंड देन आई took the opportunity of getting into Sri Vaishnav Institute of Management. वहाँ से मेरी एक्चुअली एकेडमिक की शुरुआत हुई, और क्या एकेडमिक्स होता है और क्या फन होता है. वहाँ पर मैं डॉक्टर भट्टी को बहुत सारा क्रेडिट देना चाहूँगा, डॉक्टर डीपी मिश्रा सर को क्रेडिट देना चाहूँगा. So it was an excellent insight of a corporate journey, right from ATCO to Data Pro to IT, NT, and then to MCX, and diversify into an education in Vaishnavi Institute, and then from there he was with an Wellington, and now as the director of an Bedecker Institute of Management. So we got a great insight as far as corporate journey which is concerned. Now we'll just try and look into a next episode with Dr. Nitin Joshi in terms of his education journey, and what are the quality aspects, like what the contribution he has done towards an education sector. If you like Dr. Nitin Joshi episode, please go to www.ttalk.net, subscribe and like the channel as much as you can. Thank you very much.